Thank God for what I heard today. और जो मैंने आज अभी सुना है, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उसके लिए। There's one verse in the Bible when Jesus speaks in Beatitudes. और बेटिट्यूड्स में एक वचन है जो परमेश्वर बोलता है, बात करता It है। says, "Blessed are the pure in heart, for और they shall see God." और आशीषित है वो व्यक्ति जो हृदय में शुद्ध है, वो परमेश्वर को देख पाएंगे। Sharing about people being, we should be honest in our hearts. और जैसे But भाई बात रहते हैं कि हम अपने हृदय में हम सच्चाई से हमें रहना है। but here it says, like I have to be pure in my heart to see God. I don't have to see others, what my brother is doing, what my sister is doing, but I have to be honest to see God. और यहाँ पे हम यही पढ़ते हैं कि मेरे हृदय को मुझे एकदम शुद्ध रखना है ताकि मैं परमेश्वर को देखूं, लेकिन मुझे दूसरों को नहीं देखना है, लेकिन मेरे हृदय को ऐसा रखना है कि परमेश्वर को मैं देख पाऊं। No, like I can be a separate person when I'm home, a separate person when I'm in church, or separate person, in my workplace. और मैं अलग अलग व्यक्ति हो सकता हूँ यहाँ पे, घर पे या ऑफिस में या काम करने की जगह में। But is there a fellowship with God where I can come to know that I'm not just alone, but there's God with me? और लेकिन क्या मैं वो परमेश्वर का सहभागिता से बना रहता हूँ कि ये जानूं कि परमेश्वर है मेरे साथ और मैं परमेश्वर के साथ हूँ। There's one more place, like we'll see in the Bible, if you see about Jacob. हम और एक जगह में याकूब के बारे में देखते हैं। Jacob says he wrestled with God. और वहां पे हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के साथ लड़ता है, कुश्ती लड़ता है। Uh, Genesis 32, और उत्पत्ति का 32। and we know, all know this thing, like he wrestled with God, but there's one place, और वहां पे हम सब लोग जानते हैं कि वो परमेश्वर से लड़ता है। and he comes to a place where he says, like, I have seen God face to face, yet my life has been preserved. और वहां पे एक जगह, एक स्थान पे आता है जहां पे कहता है कि मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखा है। I was thinking about these two things, like one is being pure in heart, and second here, where Jacob says, no, I have seen God to face. It's impossible to see God face to face, but here he says, I have seen God face to face. और हमें काफी बार हम यहाँ पे वहां पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे याकूब कहता है कि मैं परमेश्वर को आमने सामने देखा हूँ। But you see of Jacob, first Laban was after him because cheated him. Esau was after him because he cheated him. His life was totally, on the rocks. Like it was a straight life. और हम याकूब के बारे में देखते हैं कि कितना बार उसने धोखा खाया लबान के साथ और Esau. ईसाऊ के साथ भी उसने धोखा खाया। और फिर भी हम देखते हैं कि किस प्रकार के वो किस प्रकार से रहता है। The fear of like Esau killing me or Laban coming and killing me. So एक डर था अंदर कि कभी भी कोई भी आकर के उसे मार सकता है, ऐसा उसके अंदर एक डर भी रहता है। but here he says, he says he wrestled with God, and from that night till the day the sun came out, they were wrestling together. I think, what is that wrestling? और वहां पे वो कुश्ती लड़ता है परमेश्वर के साथ। और फिर हम देख सकते हैं वो कुश्ती क्या है, क्या चीज है। And here it says, God says, from day this day you won't be, Jacob, but you'll be Israel. He's changed his name. और वहां पे हम देखते हैं कि उस दिन के बाद परमेश्वर कहता है कि आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं रहेगा, लेकिन आपको इज़राइल का नाम दिया जाता है। I think he came to a place where this vessel came, and he came to a place where he knew like nothing is there, and anybody is there to save him, but God is there to save him. और एक ऐसा स्थान पे जाता है याकूब की कोई नहीं रहता, लेकिन वहां पे वो उसका परमेश्वर का आमना सामने होता है और जानता है कि परमेश्वर है। God knows my life, from inside out. It's not just outside in, but it's from inside out. God knows my life. और परमेश्वर जानता है बाहर से अंदर नहीं, लेकिन अंदर से बाहर परमेश्वर मेरे जीवन को जानता है। वैसे एक स्थिति। I can be a good brother to be seen in the church, not inside. और मैं एक अच्छा एक भाई बन सकता हूँ जो दूसरों को दिख सकता है बाहर से, अंदर से नहीं। I can be a good brother or at home, but my life is not right inside. मैं एक अच्छा भाई हो सकता हूँ घर में, और लेकिन अगर मेरा जीवन जो है अच्छा नहीं है अंदर से। I can be a good boss or I can be a good worker in my workplace, outside, not inside. और अच्छा एक बॉस बन सकता हूँ, अधिकारी या काम के जगह में दिखाने बाहर से दिखता है, लेकिन अंदर से नहीं। God wants me that I be that same person, a good person from inside.
और परमेश्वर चाहता है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति अंदर से मैं बनूं, not from outside for बाहर others से to be नहीं। seen. But Jesus says, no, the people who are there, they pray from the rooftops, or the people who who give alms that they can be seen. और जैसे यीशु मसीह कहते हैं जो छत के ऊपर ऊपर से वो लोग प्रार्थना करते हैं और वो लोग ध्यान भी देते हैं, वो दिखाई देता है। That they want people to know, like, no, I see, I'm such a good person, that I'm praying, so and people should think I'm religious. और ये दिखाना चाहता है कि लोग देखें कि मैं कितना एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, और लोग वो देखें उस तरीके से, वो जैसे लोग देखें उस तरीके से वो लोग देते And हैं। some people they give this, they show up, when I give so and so, they want people to think, he's a good man. और लोग यही कि वो दिखाएं और लोग जाने कि एक बहुत अच्छा इंसान है। But Jesus says they have got their reward. और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उनको उनका इनाम मिल चुका है। What is the reward? The reward is people should know that good. But और what about God? और वो इनाम क्या है? लोग जाने कि वो अच्छा है, मतलब उतना वही इनाम है। But God knows that interior motive with my life. No, am I acting to show off, or I'm really giving from my heart? और परमेश्वर जानता है कि क्या मैं दिखावा करके एक ढोंग तरीके से मैं दिखा करके करता हूँ या एक्ट करता हूँ, या मैं हृदय से चीजों को करता हूँ। There's a verse in मीका के किताब में एक वचन है, chapter 6, उसका 6वां अध्याय, मीका 6 6वां अध्याय and verse 8. उसका 8। He says, He has told you, man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justice, to love kindness, and walk humbly before your God. उसको पढ़ सकते हैं। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसको छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। The three things: one is to do justice, second is to love kindness, and third to walk humbly before God. और पहला है कि वो एक अच्छे तरीके न्याय करना और परमेश्वर के अधीन में चलना, और जो परमेश्वर को भाता है वो चीजों को करना है। Justice is not for justice to others, but justice is a life that God has given to me. और Though I live my life rightly. न्याय करना मतलब मेरा न्याय करना है कि मैं क्या सचमुच में परमेश्वर की नजरों के सामने मैं सही तरीके से जी रहा हूँ क्या। Second thing is, if I love, it's not being kind, but if I love to be kind. और ये नहीं कि सिर्फ भला होना, लेकिन क्या मैं उससे एक सच्चा तरीके से मैं अपने भलाई को प्रकट करता हूँ। And third is walking humbly before God. All these things which I do, I live humbly before God. और परमेश्वर के सामने एक सच्चे हृदय से नम्रता से रहना। May God help us to be that person. No, it's not about what others are doing, but it's about my life. Where I see, am I pure in heart? Am I striving? Even if I'm going wrong somewhere, like Jacob did many wrongs, but that thing was, I want to wrestle. I want to come out right. Is that there in my heart, or otherwise I just give up? परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम जो है एक सही तरीके से रहूं, अपने नजरों में हम चीजों को देखें, दूसरे के नजर में जीने के लिए नहीं, लेकिन अपने जहाँ पे परमेश्वर मुझे देखे, जैसे याकूब के जीवन में हुआ वैसे। Where I have that thing that I'm a vessel, I don't want to live in. I want to be with God. God will give me that life. He will give me a new name, a new life. और मुझे परमेश्वर की नजर के सामने जीना है, परमेश्वर मुझे एक नया जीवन, नया नाम देगा। There's one more thing. I think last week there was this Sister Sunday. और पिछले हफ्ते जो है जो सिस्टर्स का जो संडे था, And I was listening to all the sisters, sharing. और मैं कुछ बहन जो बांट रहे थे उसको मैं सुन रहा था। One thing I was coming to heart: God made, woman from the man's rib. और एक चीज मैंने देखा कि परमेश्वर ने स्त्री को मनुष्य की एक पसली से बनाया है। What is the work of the rib? Rib is the closest to the heart. और पसली एक ऐसा चीज है जो हृदय के एकदम नजदीक रहता है। Second is the rib. It's a covering. It's a protection to the heart and the organs near it. और वो जो है एक बचाता है, मतलब एक प्रोटेक्शन के लिए है, वो रहता है। I know I'm not married, but but thing is, when the love of the husband or the wife is there, they should be close to each other.
and the sister should be a protection to the brother. और मैं जानता हूँ कि मेरा विवाह नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये जानता हूँ कि उनका एक पति पत्नी का संबंध इतना निकट होना चाहिए कि एक पत्नी जो है और पति जो है वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना है। The physical relation is for a moment, but the fellowship with, the love of God with them is for a lifetime. और जो व्यक्तिगत जो संबंध है थोड़ा समय के लिए, लेकिन परमेश्वर का जो संगति है वो जो है वो लगातार बना रहेगा। A sister is not a weak vessel, but a sister is a vessel of encouragement to the brother. और जो सिस्टर है वो एक वीक पात्र नहीं है, मतलब कमजोर पात्र नहीं है, लेकिन एक भाई के लिए या पति के लिए एक उत्साह देने वाला एक पात्र है। God has put each other that they may encourage each other and come closer to God. और परमेश्वर एक दूसरे को इसलिए दिया है ताकि एक दूसरे को उत्साहित करे और वो लोग परमेश्वर के निकट आए। Thank God. परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज जैसे हमने सुना कि एक दिखावट करना या एक ढोंग करना कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक भीतर में वो इसलिए आता है। जब मैं अपने जीवन को जांचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि दिखावा करना या लोगों के सामने एक मुखौटा पहनना, जैसे हमने बुधवार की मीटिंग के अंदर अबू अंकल ने बताया था कि हम एक कोट घर के अंदर रखते हैं और घर में एक अलग प्रकार का हमारा एक दिखावा होता है। और जब कोई कलीसिया से कोई भाई या बहन या कोई एल्डर अगर घर पर आ जाता है तो तुरंत हम उस कोट को पहन लेते हैं जो बहुत अच्छा दिखावा करने की कोशिश करता है। और इस बात को मैं अपने आप को देख पाता हूँ कि इसलिए मैं दिखावा करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं कुछ न कुछ खोने के लिए डरता हूँ। या अपना नाम हो सकता है, लोगों के सामने मेरा नाम, शायद मैं बहुत ज़्यादा ईमानदार हो गया तो शायद मेरा नाम लोगों के सामने बहुत ही, लोग मेरे को एक अच्छे नज़र से नहीं देखेंगे या लोग मुझको देखेंगे अरे ये तो ऐसा व्यक्ति है। कहीं ना कहीं उस नाम को बरकरार रखने के लिए, या हो सकता है आर्थिक नुकसान हमारे जीवन में न हो, इसके कारण से हमारे जीवन के अंदर हम उस दिखावे को करने की कोशिश करते हैं, या कुछ भी ऐसा नुकसान हो सकता है जिससे बचने के लिए वो हम उस दिखावे को करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने यही हमारे जीवन में सिखाया है। एक समय मुझे याद आता है कि लॉकडाउन के पहले हमारी कंपनी के अंदर एक पॉलिसी था कि आप इंटरनेट का घर पे जो भी आप इस्तेमाल करते हो उसको आप कंपनी से क्लेम कर सकते हो। और एक बार मैं लॉकडाउन के बाद मेरे बिल को क्लेम कर रहा था और मेरे बाजू में एक सर थे, उन्होंने वो मेरे कलीग ही थे, उसने देखा और वो मुझे कुछ कहानी बताने लगे। और वो उस कहानी को इस प्रकार बता रहे थे कि एक चाणक्य करके कोई उनके एक महाभारत या कोई कहानी को बता रहे थे कि महाभारत में एक चाणक्य करके राजा के महल में काम करता था और वो जब लिखने का काम करता था और वो 2 दिए को रखता था जब राजा के घर में, तो दो दिए क्यों रखता था? एक दिए से काम कर सकता है रात को भी। तो वो उसको जब पूछते हैं तो वो ये बताता है कि जब मैं महल में होता हूँ तो राजा का जो दिया होता है उसी का इस्तेमाल मैं करता हूँ। जब मैं घर पर आ जाता हूँ तो अब मैं घर पर अपने दिए का इस्तेमाल करना चाहूँगा। और तब इस बात को उन्होंने बताया ताकि वो मेरे बिल को वो क्लेम नहीं करते थे और मुझे लगा कि अब मैं क्लेम कर सकता हूँ उसको, तब भी लॉकडाउन के बाद भी। और मुझे इतनी शर्मिंदगी वहाँ पर आई कि एक अन्य जाति व्यक्ति मुझको उसके बाद से मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम कोई ऐसा बिल या ऐसा कुछ क्लेम नहीं करना चाहिए। और मैंने देखा कि वो आर्थिक नुकसान न हो उसके कारण से मैं कुछ उसको ढांपने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैंने उस बात को देखा कि वहाँ पर मुझे ईमानदार होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे वहाँ पर एक ज्योति में बन सकता था, वहाँ पर एक नमक में बन सकता था लोगों के सामने, पर मैंने उस मौके को खो दिया। और कई बार मैं एक ऐसे नहीं लेकिन कई सारे ऐसे मौके आते हैं जहाँ कुछ ना कुछ खोने के डर से मैं उस दिखावे को करता हूँ, मेरा नाम न खो बैठूँ, आर्थिक नुकसान न हो जाए, कुछ लोग जान न पाए मेरे बारे में। और परमेश्वर उस बात से मुझे उस घटना ने मुझे पूरी तरह से जैसे तोड़ के रख दिया कि कोई व्यक्ति मुझे प्रभु में नहीं है फिर भी उस कहानी से मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है। और मैं अपने आप में एक शर्मिंदा महसूस करने लगा कि प्रभु किस प्रकार का व्यक्ति मैं, किस प्रकार का गवाह मैं हूँ, काम की जगह पर मैं सही गवाह नहीं हूँ। और यही परमेश्वर हमें ईमानदार होने के संबंध में सिखाने की कोशिश मेरे जीवन में मुझे सिखाया है कि ईमानदार होना कठिन जरूर हो सकता है। जैसे हमने वचन में लिखा है कि हम पूरी तरह से ईमानदार बनने की इच्छा रखते हैं लेकिन हम पूरी तरह से नहीं बन पाते हैं। लेकिन प्रभु हमारी सहायता करे ईमानदार होने के लिए कि प्रभु हर रीति से हम प्रभु के सामने जैसे हम हैं आइए वैसे हम प्रभु के सामने आए, ताकि प्रभु हमको ग्रहण करता है। वो हमें देखकर ऐसा नहीं बोलता कि तू क्यों इस प्रकार का व्यक्ति है, तू क्यों पाखंड करता है। वो इसलिए हमको हमारे पाखंड को दिखाना चाहता है,
हमें दंडित करने के लिए नहीं, निराश करने के लिए नहीं, दोषी ठहराने के लिए नहीं, पर हमको बदलने के लिए। यूसुफ के भाइयों के बारे में जब हम देखते हैं कि यूसुफ के भाई इतने पाखंड से भरे हुए थे, वो यूसुफ को गड्ढे में डालते हैं और बाप को जाकर झूठ बोलते हैं कि वहाँ पर एक जानवर आता है और उसने अपने भाड़ खा। इतना बड़ा झूठ वो बोल पाते बड़े आसानी से। एक पाखंड देखते हैं कि वो पूरी तरह से वहाँ पर एक झूठ को बोलते हैं। लेकिन एक ऐसा समय भी आता है कि उनका जीवन बदल जाता है जब यूसुफ मिस्र का प्रधान हो जाता है। उसके पास से लौटकर जब उस बोरे के अंदर पैसा, या यूसुफ ने जब उन चीज़ों को डाल दिया था उनको बिना बताए, तब वो पूरी तरह से सच्चाई को बोलते हैं कि ये सब कुछ जो है आपने डाला था। वहाँ पे झूठ का प्रयोग नहीं करते, एक बदले हुए भाई थे। और ये हमारे लिए भी एक आशा है कि परमेश्वर, हम शायद उस पहले के जो भाई जो थे उस प्रकार के होंगे, लेकिन प्रभु हमें अब बदलना चाहता है, हमारे जीवन को पूरी तरह से एक आज़ादी में लेकर आना चाहता है कि हम उस खोने के डर से आज़ाद हो सके कि प्रभु हाँ, मेरे जीवन के अंदर इच्छा तो है, लेकिन मैं कुछ चीज़ों को पकड़े हुए हूँ मेरे जीवन के अंदर, मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता। मेरे नाम को, मेरी अच्छी जो छवि जो लोगों के सामने है, जब मैं ऐसे मेरी बातों को यदि तेरे सामने मानूंगा या अन्य लोगों के सामने मानूंगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने आप को सच में जांच सके कि और ईमानदार होना कितना ज़रूरी परमेश्वर के सामने है। वो एक ही दरवाज़ा है जो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में हम खोले, ताकि प्रभु बाकी के सारे दरवाजे हमारे जीवन में खोल सकता है। कि ईमानदार बनकर प्रभु हाँ, मैं इस प्रकार में संघर्ष कर रहा हूँ मेरे पापों के अंदर, उन्हीं पापों में बार बार कर रहा हूँ,